5 لوگ اس میں جاں بحق ہوئے اور ایک خود کش حملہ آور ہے، اور یہ سی جو ہے 4 جو ایکسپلوسیو ہے، اور یہ 60 سے 80 کلو کے درمیان اس خود کش حملہ آور اس خود یہ ایک گاڑی میں ہی بیٹھا رہا، اور اس کی فرینزک کے لیے بھیجا جا چکا ہے۔ پاکستان کو اندر سے ڈیسٹیبل کرنے کی غیر ملکی کوششیں ہمارے پڑوسی ملک میں کچھ سازشیں کی جا رہی ہے، پاک فوج، اس کی عظیم ایجنسیاں اور 22 کروڑ عوام مل کر اس کو شکست کریں گے۔ 2.5 سے 3 لاکھ سوشل میڈیا اکاؤنٹ صرف ہندوستان سے کھلے ہیں اس 8-10 دن میں۔ اس دھماکے کی اصل مقاصد جو ہیں وہ پاکستان کے امن کو تاہ و بالا کرنا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام ایوان سے ایوان تک میں خوش آمدید، میں ہوں آپ کے ساتھ نادیہ مرزا۔ ناظرین، پاکستان کی تاریخ کا ایک اور انتہائی افسوسناک دن کل سے اب تک جب سے یہ خبر ملی ہے اور جو اس میں ہم چیزیں دیکھ رہے ہیں، 5 لوگ اس میں شہید ہو گئے، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، 10 کے قریب اس میں زخمی ہیں، اور جو کوئٹہ میں یہ واقعہ پیش آیا، کوئٹہ کے ہوٹل میں پارکنگ میں جس طرح سے یہ بلاسٹ ہوا، اس کی اپنی چیزیں ہیں جو بلوچستان کو اگر ہم پرٹیکولرلی لے کر وہاں پر جو پاکستان دشمن قوتیں ہیں ان کی جو انوالومنٹ ہے، جو ان کی پینیٹریشن ہے، اور پھر ہمارے جو ایف سی کے اہلکار اور دیگر جو فورسز ہیں، قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، وہ جس طرح سے ان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے اس کو سنبھالے میں، ایسے میں یہ جو واقعہ ہے یہ دل ہلا دینے والا واقعہ ہے، انتہائی افسوسناک واقعہ ہے۔ اچھا، اگر میں انسٹیبلٹی کی بات کروں یا لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کی بات کروں تو یہ تو ایک ایسا واقعہ ہے جو کافی عرصے بعد ہم نے دوبارہ سے ایک سنا کہ جی خودکش حملہ ہوا ہے۔ ایک وہ زمانہ تھا جس میں ہم نے دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑی ہے، ایک منظم جنگ ہم نے لڑی ہے دہشت گردی کے خلاف، اور ہزاروں جانوں کے نذرانے اس میں ہم نے پیش کیے، اسی وجہ سے آج وزیر اعظم صاحب یہ کہہ بھی رہے تھے کہ ہم اس جنگ کو لڑ چکے ہیں، ہم اس میں کامیاب ہو چکے ہیں، اور اب ہم دوبارہ افورڈ نہیں کر سکتے، اجازت نہیں دے سکتے، اور کسی طور بھی اس کو ممکن نہیں ہونے دیں گے کہ ایک دفعہ پھر ہمارا ملک جو ہے اس طرف جائے۔ اب یہ جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے، اس کو اگر آپ ریلیٹ کریں پولیٹیکل انسٹیبلٹی سے، تو میرا خیال ہے کہ اس سے ضرورت ہے تمام کی تمام پولیٹیکل پارٹیز جو کہ سٹیک ہولڈرز بھی ہیں کہ وہ ہاتھ ملائیں، کاندھے سے کاندھا ملائیں، ایک جگہ پر بیٹھیں، سر جوڑیں۔ اس سے پہلے ہم نے پنجاب میں جو واقعات دیکھے تو یہ واقعات بہتر ہے کہ ابھی کے ابھی ان کو کنٹرول کر لیا جائے۔ جو پینلسٹ ہیں ان سے میں آپ کا تعارف کرا دیتی ہوں، پروگرام کا کریں گے باقاعدہ آغاز۔ اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر نوشین حامد صاحبہ، ایم این اے پی ٹی آئی کی پارلیمانی سیکریٹری آن ہیلتھ۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ، بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا۔ اخوان زادہ چٹان صاحب، سینئر رہنما ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے، السلام علیکم چٹان صاحب، بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا بھی۔ سرفراز بگٹی صاحب ہمارے ساتھ ابھی تھوڑی دیر میں موجود ہوں گے، بلوچستان عوامی پارٹی کے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بریگیڈیئر فاروق حمید صاحب ہمارے ساتھ ہیں، پولیٹیکل اور ڈیفینس انالسٹ۔ السلام علیکم بریگیڈیئر صاحب، بہت شکریہ جی آپ کے ٹائم کا بھی۔ اچھا ڈاکٹر نوشین حامد صاحبہ، میں جب یہ بات کرتی ہوں پولیٹیکل انسٹیبلٹی، اور اگر میں اس کو ریلیٹ کرتی ہوں یا کنیکٹ کرتی ہوں لا اینڈ آرڈر سچویشن سے، تو لا اینڈ آرڈر سچویشن کو کنٹرول کرنا کل جیسے واقعہ وہ میرا خیال ہے ہمارے اور ہماری سے زیادہ تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کی آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہیں۔ ہمیں یہیں پہ سٹاپ لگانا ہوگا کیونکہ ہم نے اس سے بہت بہت کچھ دیکھ چکے ہیں، بڑا بھیانک وقت تھا جو ہم گزار چکے ہیں۔ جی بالکل، میں آپ کے ساتھ ایگری کروں گی۔ بڑی مشکل سے ملک میں تھوڑی سی اسٹیبلٹی آئی تھی، اور یہ لا اینڈ آرڈر سچویشن لوگوں کو پھر سے وہ والے دن آئے تھے کہ لوگ کانفیڈنٹ فیل کرتے تھے باہر نکلتے ہوئے۔ اس سے پہلے تو ایک وہ زمانہ بھی تھا کہ جب گھر سے باہر نکلتے تھے تو ماؤں کو یہ نہیں پتا تھا کہ بچہ جمعے کی نماز پڑھنے جا رہا ہے، تو خیر مانگتے رہتے تھے ہم سب لوگ۔ تو اب اللہ کا شکر ہے کہ ہماری فوج نے اور ہماری دوسری سیکیورٹی ایجنسیز نے ایک بڑا مثبت رول پلے کیا، اور دہشت گردی کو بہت حد تک جو ہے ہم نے اکھاڑ پھینکا ہے۔ مگر بلوچستان جو ہے وہ ایک ایسا صوبہ ہے جہاں پر ہمیشہ سے ہم اس قسم کے واقعات جو ہیں وہ کہ شکر ہے کہ اس کا انسیڈنس بہت کم ہو گیا ہے، مگر ابھی بھی بلوچستان میں جیسے ابھی کچھ دن پہلے ہم نے ہزارہ کے لوگوں کا انسیڈنس دیکھا، اس سے پہلے بھی، تو یہ دفعہ فوقتاً بلوچستان میں اسپیشلی جو ہے یہ ٹارگٹ کیا جاتا ہے۔ اور وہاں پر جس طرح سے وزیر داخلہ نے بھی تھوڑی سی انڈیکیشن کی ہے کہ ہمیں ثبوت ملے ہیں کہ ہمارے پڑوسی ملک جو ہے وہاں پر ان کی کچھ اس قسم کی نیٹ ورکنگ موجود ہے، جو کہ وہاں پر انسٹیبلٹی کے لیے اس قسم کے واقعات جو ہیں گو کہ ان کے کافی کم ہو گیا انسیڈنٹس، مگر ابھی بھی ہمیں یہ چیزیں وہاں پر اس صوبے میں پھر بھی ہمیں نظر آتی ہیں۔ تو ڈیفینیٹلی اب اس کے بعد ہماری سیکورٹی ایجنسیز زیادہ الرٹ ہو گئی ہیں اور اس کے روٹ کاز کو بھی پہنچیں گی، اور
इंशाल्लाह ताला कोशिश बिल्कुल, और होगी कि इसमें हमें दोबारा बात ना हो। करनी भी होगी चटान साहब, जिस तरह से शेख रशीद साहब भी जो कि वजीर दाखिला भी हैं, ज़ाहिर वफाकी वजीर दाखिला, उन्होंने भी कहा कि सिक्योरिटी लैप्स तो था, क्योंकि जाहिर सी बात है एक इतना बड़ा होटल है, चाइनीज एम्बेसडर वाज देयर एट दैट टाइम, उसके बावजूद एक गाड़ी जो कि 60 से 80 किलोग्राम वो एक्सप्लोसिव लेके वो एंटर होती है, या खुदकुश बम्बार जो एंटर होता है वो गाड़ी में बैठा रहता है, तो इस किस्म के वाकयात, क्योंकि आप लोग की जब दौरे हुकूमत था उसमें तो ये एक लामतनाही सिलसिला था, उसको आप किस तरह से रिलेट कर रहे हैं, इसका बैकग्राउंड पे आपकी राय क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जो ये वाक़या हुआ है इसका मैं शदीद अल्फाज में मज़म्मत करता हूँ, और इसमें जो लोग शहीद हुई हैं और जो ज़ख्मी हैं इनके लवाकिन के साथ मुकम्मल हमदर्दी का इजहार करता हूँ। दूसरी बात ये कि हमारा जो दौर था वो तो कुछ और दौर था। इसमें तो रट ऑफ द गवर्नमेंट ट्राइबल ज़ीरिया से ख़त्म हो चुका था, सवात से पाकिस्तान का झंडा उतारा गया था, बलूचिस्तान में तराना बजाना बंद हो गया था, और मौलाना फजल रहमान साहब आपको याद होगा कि असम्बली में खड़ा हुआ कि अस्करियत पसंद या दहशतगर्द ये मारगला के पहाड़ों तक पहुँचे। लेकिन फिर हमने ऑपरेशन की, हमने हमारे फोर्सेस के नौजवानों ने, हमारे सिविलियन ने, हमारे पॉलिटिशियन ने, यानी पूरे कौम ने मिलकर अपने जानों की कुर्बानी दी, अपना आज कुर्बान कर दिया अपने बच्चों के कल के लिए, और इस मुल्क में अमन लाया। और इस अमन में जो कलीदी किरदार हमने अदा किया वो हमने मुत्तफ़िक़ा तौर पे सारों ने मिल के तमाम स्टेक होल्डर ने मिल के एक प्रोग्राम बनाया जिसका हमने नाम दिया नेशनल एक्शन प्लान। सही है। और इस नेशनल एक्शन प्लान पे आलन की कि इस पे मुकम्मल तौर पे अमल दरामद कभी भी नहीं हुआ। इस पे जो हमारे एजेंसियाँ सिक्योरिटी के थे उन्होंने इस पे अमल करके जहाँ जहाँ पे हमारे रेट ऑफ द गवर्नमेंट नहीं था वहाँ पे रेट ऑफ द गवर्नमेंट कायम हुआ। मेरे अपने घर में, मेरे अपने खानदान में 4-5 लोगों ने शहादती दी। मेरे कबीले में, सलारजी कबीले में कम से कम 300-400 लोगों ने जान के, आम लोगों ने भी नहीं, कबायली मशारान ने जान के कुर्बानियाँ दी। लेकिन अब ये महीना जो अप्रैल का महीना है, इसमें अभी महीना पूरा नहीं हुआ है, आज मेरे ख्याल में 22 है कि 23वां तारीख है, अभी तक 7 लोग टारगेट किलिंग में मारे गए हैं, जिसमें एक जुमात उलमा इस्लाम का, अंसारुल इस्लाम का सूबाई नायब अमीर है, इसमें एक हमारी पुलिस का आदमी है। बलूचिस्तान की भी हालात देख रहे हैं। ब्रिगेडियर साहब, आप डिफेंस एनालिस्ट भी हैं, बहुत सारी चीज़ें जिसका जिक्र डॉक्टर नौशीन आमिर साहबा ने भी किया, चटान साहब ने भी किया, लेकिन उसके साथ साथ जब हम हमेशा नेशनल एक्शन प्लान की बात करते हैं तो वो नेशनल एक्शन प्लान आधा अधूरा क्यों रह गया? बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया। देखिए, वो तो सानिया एपीएस के बाद आया था जी 2015 में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 2015 में आया था, 14 में एंड में हुआ था एपीएस। वो ये कि पहले 1.5-2 साल उस पर बड़ी काम हुआ, एक नए जज्बे के साथ था, लोग बड़े मोटिवेटेड थे, लोग गुस्से में थे, और हमारी पॉलिटिकल पार्टी में कंसेंसस हो गया था। लेकिन मैंने ये नोट किया कि जब नवाज शरीफ और गवर्नमेंट नवाज शरीफ साहब की थी, जब नवाज शरीफ साहब का वो पनामा वाला केस शुरू हुआ, तो मुझे अच्छी तरह याद है उस वक्त नेशनल एक्ट, और देखिए मिलिट्री कोर्ट्स बन गए थे, लोगों को सजाएं हो रही थी, सजाएं मौत लोगों को हो रही थी। लेकिन पनामा केस जब चलना शुरू हुआ नवाज शरीफ को, उसके बाद मैंने देखा पीएमएलएन की गवर्नमेंट का इंटरेस्ट नेशनल एक्शन प्लान में खत्म होना शुरू हो गया। फिर पाकिस्तान में हालात जो है वो लोगों का, मीडिया भी जो है वो भी सब और चीजों में जो है उलझ गए, तो जिसपे आहिस्ता आहिस्ता नेशनल एक्शन प्लान जो है, नेक्टा, ये तमाम ये पीछे रह गए। लेकिन अब जो मैं बात कहना चाह रहा हूँ, देखिए ये आप जनरल स्टेटमेंट हम नहीं दे सकते कि जी ये अपना जो कल जो हमला हुआ वहां पे दहशतगर्द का खुदकुश हमला सिनेना होटल कोटा में, कि वो जनाब पाकिस्तान को तीस चलाएगा, वो तो ओवरऑल तो आप कह सकते हैं। लेकिन जब चाइनीज डेलीगेशन वहां पे था, जब सुना है कि चाइनीज एम्बेसडर वहां पे मौजूद थे, और फिर वहां पे आना, इसका मतलब ये कि सिक्योरिटी लैप्स तो हुआ है, क्योंकि आपको मालूम है कि सीपैक की वजह से बड़ी तादाद अपना बहुत मूवमेंट है हमारे चाइनीज डिप्लोमेट्स की, चाइनीज इंडस्ट्रीज की, और अपना हमारे जो और चाइनीज जो आते हैं डेलीगेशन, वो जाती है पूरे पाकिस्तान में, सीपैक के प्रोजेक्ट चल रहे हैं ज्यादातर बलूचिस्तान में, तो ये एक उनके लिए टारगेट बन जाता है। ये तो अल्लाह की मेहरबानी है कि कल बचपचा हो गया। देखिए आज चाइनीज गवर्नमेंट ने भी बड़ा स्ट्रांगली कंडेम किया है कि खुदा न खास्ता किसी एक को कुछ हो जाता तो हमारी बड़ी बदनामी होती। अब ये हुआ क्या है,
हुआ ये है कि हम लोग सब टीएलपी के मामलात में बिजी थे, पूरी कौम, ठीक है ना जी। दुश्मन फायदा उठाता है कि जब तमाम लोगों की ओरिएंटेशन जो है वो कहीं और हो। हम टीएलपी के मामलात में थे पिछले 10 दिन में, उन्होंने मौके का फायदा उठाया और वहां उन्होंने ये, और वो ताक में बैठे थे कि चाइनीज आएंगे तो इनको उनके साथ कुछ करेंगे ताकि पाकिस्तान की बदनामी हो, पाकिस्तान एम्बेरस हो इंटरनेशनल लेवल, चाइना पाकिस्तान के दरमियान दूरी बढ़े और चाइनीज लोग जो उनको डराया जाए और वो जो आ रहे हैं और इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उनको वो दूर हो जाए। तो कोशिश तो उन्होंने की है, लेकिन अल्लाह की मेहरबानी है वो हमारे फॉरेन गेस्ट जो है वो सारे वो बच गए। ठीक है, तो ठीक है। ये क्या है, देखिए इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एक नेक्सस है, वो नेक्सस अभी तक कायम है। हर 3-4 महीने के बाद अब देखिए बलूचिस्तान में ये बीएलए हो गया, लश्कर जंगी हो गए, रॉ हो गया, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, इनका जो नेक्सस है ना ये प्लान करके हिट करता है। हर 3-4 महीने बाद ये पैटर्न आप इसको देख लें। मेन जंग तो खत्म होगी दहशतगर्दी के खिलाफ, लेकिन ये बलूचिस्तान सीपैक की वजह से याद रखें, जब तक सीपैक कायम और हमेशा इंशाल्लाह कायम रहेगा और तरक्की करेगा, ये हमेशा आप पे हमले करते रहेंगे। वो दुश्मन की बात ये है कि एक तरफ हम भारत के साथ पीस टॉक्स की बात कर रहे हैं और अब तो सरकारी तौर पे इतराफ कर दिया गया है कि यूं मीडिएट कर रहे हैं इंडिया पाकिस्तान के दरमियान। लाइन ऑफ कंट्रोल तो ठंडी होगी, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन उनका जो मंसूबे हैं पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने में उसमें कोई कमी नहीं आई है। ठीक है, आपने मिलिट्री कोर्ट्स का जिक्र किया तो मुझे ये याद है जब मिलिट्री कोर्ट्स बनी थी तो वो ये कंडीशनल थी कि जी जुडिशियल रिफॉर्म्स आएंगी, पैरेलल अदालतों में निज़ाम बेहतर करेंगे, उसमें रिफॉर्म्स लेकर आएंगे, इस्लाहात लेकर आएंगे, नंबर ऑफ कोर्ट्स बढ़ाएंगे और उसके बाद मिलिट्री कोर्ट्स का खात्मा होगा। लेकिन जुडिशियल रिफॉर्म्स भी नहीं आई, कुछ भी नहीं हुआ। मिलिट्री कोर्ट्स की जाहिर सी आता है वो एक अपनी एक उनकी आईनी मुद्दत थी, वो वहां पर खत्म हो गई। लेकिन अफसोस की बात यह है कि नेशनल एक्शन प्लान का ही हिस्सा था लेकिन हम जुडिशियल रिफॉर्म्स नहीं कर सके। लेकिन अब वो वक्त है जिसमें मेरा ख्याल है आप अपोजिशन को भी आप लोग दावा दे रहे हैं, लेकिन एक होती है फॉर्मेलिटी वाली दावत और एक होती है वाकई सच्चाई वाली दावत, जिसमें आप वाकई इनके पास जाएं, आपका कोई जो 10 रुकनी कमेटी आप लोगों ने बनाई है इनको राजी करें, पीएमएलएन को राजी करें, स्टेक होल्डर्स के साथ बैठे, ऐसा कुछ है जहन में कोई स्केच? देखें जी, इस वक्त इसमें कोई शक नहीं है कि मुल्क इस वक्त जिन हालात में से गुजर रहा है, इस वक्त ये मुल्क तमाम पार्टीज़ का है, तमाम लोगों का है और सब स्टेक होल्डर्स हैं, सबको मिल बैठने की ज़रूरत है और सबको एक पेज पर आने की ज़रूरत भी है। मगर अनफॉर्चुनेटली इस वक्त हमारे मुल्क की सिचुएशन कुछ ऐसी बनी हुई है कि पॉलिटिकल इस वक्त बहुत ज़्यादा एक आपस में डिफरेंसेस आए हुए हैं। ये जो पीडीएम वगैरह सारा, मैं समझती हूँ कि इस वक्त सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ का तमाम फोकस होना चाहिए था कि हमारा मुल्क में स्टेबिलिटी आए और उसके लिए सबसे पहले जो है हमें इकोनॉमी को स्टेबलाइज करना है। इकोनॉमी स्टेबलाइज होगी तो फिर बाकी चीज़ें ठीक होंगी। और अभी माजरत के साथ डॉक्टर साहब, लॉ एंड ऑर्डर स्टेबलाइज होगा तो इकोनॉमी स्टेबलाइज होगी। जी बिल्कुल, फर्स्ट प्रायोरिटी तो हमारी लॉ एंड ऑर्डर। जी बिल्कुल, पहले तो लॉ एंड ऑर्डर है, मगर ये सारी चीज़ें इंटर रिलेटेड है ना, तो हमें इन सारी चीज़ों को साथ लेके चलना है। तो इस वक्त जो सिचुएशन बनी हुई है और जो इस वक्त कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ ने अपना एक वो नेक्सस बनाया हुआ है और वो जिस तरीके से हुकूमत को डिस्टेबलाइज कर रही हैं, तो सारी चीज़ें इफेक्ट होंगी, इकोनॉमी इफेक्ट होगी, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन होगी। तो मैं समझती हूँ इस वक्त सारे मिलकर नेशनल कॉज के लिए एक दफा सब मिल बैठे और ये अपने पर्सनल एजेंडाज को लेके ना चलें। 101% ठीक है, लेकिन एक छोटी सी बात से इख्तिलाफ करूंगी इनका कोई नेक्सस नहीं है, इनकी हर एक की अपनी अपडेट नहीं थी। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। खासतौर पे हमने टीएलपी के मामले में जब गवर्नमेंट एक एग्रीमेंट करती है, एक जलती हुई आग को बुझाने की कोशिश करती है, फिर उनसे एग्रीमेंट करती है, एक मुआहदा होता है, एक अकॉर्ड होता है, पार्लियामेंट में लाने की बात होती है, और वो पार्टी जो सबसे ज्यादा शोर करती है कि पार्लिमानी सियासत पे हम बिलीव करते हैं, जब वो बिल पार्लियामान में आता है कि जी सारी सियासी पार्टीज आगे आए इस पे बात करें, आप गायब हो जाते हैं। देखिए, मैं नादिया आपने जो सवाल किया इस पे भी आ रहा हूँ, लेकिन इससे पहले मैं 2 बातों का, ताकि मैं हिस्ट्री को थोड़ा सा सेट करूँ। क्या वजह है कि 2018 में सारी पार्टियां मिल बैठ के 18वीं तरमीम में सब मुतफिक हो जाते हैं? 2008 में फिर नवाज शरीफ साहब के दौर में सारी पार्टियां मिल बैठ के नेशनल एक्शन प्लान पे मुतफिक हो जाते हैं। ठीक है। इस हुकूमत को जैसे ये बना, अपोजिशन ने असेंबली में कह दिया कि आप कदम बढ़ाए, हम आपके साथ हैं, कम से कम इकनॉमिक पे हम आपके साथ एक एग्रीमेंट करने को तैयार हैं। अभी आ जाते ये रिसेंट आपने जो कह दिया,
ये वाक़या भी पहली बार आया नहीं है PTI की हुकूमत में, हमारे दौर में भी आया था, नवाज शरीफ साहब के दौर में भी आया था, लेकिन हमने इसको इस तरीके से टैकल नहीं किया था जो मौजूदा हुकूमत ने किया। पहली बात यह है कि एक जो मुआहिदा हुआ उसमें वो ये कहते हैं कि उसमें ये शिक नहीं है कि सफ़ीर को निकालेंगे, अब है नहीं है, मुआहिदा सामने आएगा तो पता चलेगा। दूसरी बात यह है कि उसमें बड़ा कैटेगोरिकली था कि इस मुआहिदे को, अगर मैं गलत हूँ नौशीन साहब आप मुझे करेक्ट कर दीजिएगा, कि इस मुआहिदे को पार्लियामेंट में लेके जाया जाएगा, और जब पार्लियामेंट में ले जाने की बात होती है तो उससे मतलब यही होता है कि उसमें अपोजिशन हो या हुकूमत हो, सबकी राय ली जाएगी और इस पर बहस की दूसरी जाएगी। बात करारदाद मैं में मान लिखा लेता हुआ भी यही है। ऐसे ही- मैं मान लेता ऐसे ही है, हूँ, पार्लियामेंट अगर में मुआहिदे में ये नहीं है तो फिर ये लोग मुआहिदा क्यों छुपा रहे हैं? मुआहिदे के सामने लाए ना, देखिए मुआहिदे मीडिया में के पार्लियामेंट सामने में लाने वाली लाए, बात तो थी ना, मुआहिदे को सामने पार्लियामेंट में सामने लाए, तो लाए थे ना। लाए हैं, जो करारदाद जो के अंदर जितनी नहीं बातें लाए लिखी हैं गई ना, हैं वो सब नहीं मुआहिदे लाए। की जो बातें ही मुआहिदा उसमें जिस पे लिखी दस्तखत गई हैं। है, इसमें जिस पे दस्तखत है, इसमें बाकायदे तौर पे लिखा है कि हम सफीर को निकालने के लिए पार्लियामेंट से पूछेंगे, पहले तो ये उनका पार्लियामेंट में करारदाद लेकर आएंगे, उस पर बहस होगी। जी बिल्कुल। मुख्तसर सी बात कर लूं ब्रिगेडियर साहब, अगर आप छोटा सा एनालिसिस मुझे वन लाइनर दे दें, क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ कि पीपल्स पार्टी क्यों नहीं आई, क्यों वो उस दिन पार्लियामेंट के इजलास से भागी, जबकि वो पीपल्स वो तो पार्टी मैंने बता दिया जो पीपल्स पार्लियामेंट पार्टी का, मैं हूं कि ब्रिगेडियर साहब का मौक़िफ़ बताएगा। दिया ना, मैं मैंने बता दिया कि हम क्यों नहीं आए। भाई वो आप बताएंगे, आप अपनी पार्टी का मौक़िफ़ बताएंगे, एक न्यूट्रल ओपिनियन मुझे ब्रिगेडियर साहब से चाहिए, वरना फिर मैं ब्रिगेडियर साहब को क्या करना है मैंने या जी। अगर आपके पास टाइम है तो 2-3 मिनट दे, नहीं तो पहले आप ब्रेक ले लें, फिर ब्रेक के बाद मुझे 3 मिनट दे दें, फिर मैं आपको बता देता हूँ मेरी असेसमेंट क्या है, पीपल्स पार्टी क्यों नहीं आई पार्लियामेंट के लिए। आप बताएं क्यों नहीं आई। देखिए पहली बात तो यह है कि असूलन एक बात की सही है, मैं भी समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को होना चाहिए था, फॉरेन मिनिस्टर साहब को होना चाहिए था, ये बात असूली तौर पे इन्होंने सही फरमाई है। ठीक है, पीपल्स पार्टी का ये जो बयान था कि जनाब वो ये था तो हमें नहीं पूछा गया पहले, अब जो भुगते खुद ये और वो इस तरह का, मेरी नजर में एक कवर अप था। याद रखिए पीपल्स पार्टी और जो दारी बात है कंट्रोल होती है बाय द जरदारी फैमिली, में किसी को शक तो नहीं है ना। जरदारी फैमिली, अब अखुंदादा साहब नाराज हो जाएगी तो मैं बात करने लगा हूं, लेकिन बात करनी चाहिए। जरदारी फैमिली के बड़े क्लोज रवाबित रहे माजी में पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट के साथ, इनके वहां पे रियल एस्टेट इंटरेस्ट रहे हैं। वो याद है आपको जब 2010 के फ्लड में हम सब मर रहे थे पाकिस्तान में, तो जनाब मोहतरम जरदारी साहब क्या थे, हेलीकॉप्टर में पेरिस से जा रहे थे, जो पेरिस के बाहर, और फ्रेंच एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर था जो पेरिस के बाहर उनका शैटे और एक महल था जो उनका अपना जाती था, और उसकी तस्वीरें खबरें अभी भी आपको नेट में सारी मिल जाएगी। नंबर 2, आपको याद है कि मालूम है अभी भी फ्रांस की टॉप लीडरशिप जो है पॉलिटिकल, उनको उनकी सजाई हुई है, उनको जेल मिली है अगुस्ता सबमरीन के किकबैक्स के केस में, जिसमें हमारे एडमिरल मंसूर हक साहब जो है जिनके वफात हो गई है वो भी थे, जिनको जरदारी साहब ने माफ कर दिया था। और जरदारी साहब का भी मैं ऑन एयर आपके प्रोग्राम में कर रहा हूं, उनके बारे में हम सुनते थे कि पति उनका क्या ताल्लुक है ये अल्लाह बेहतर जानता है। माई पॉइंट इज दिस, पीपल्स पार्टी ने बहाना बनाया कि वो क्योंकि फ्रेंच के साथ उनके ताल्लुकात हैं, द फ्रेंच गवर्नमेंट एंड द फ्रेंच एस्टैब्लिशमेंट नो अ लॉट अबाउट द जरदारी फैमिली, इसलिए उन्होंने पार्लियामेंट में डॉज किया कि हम आई ना, वी डोंट वांट टू बी अ पार्टी टू इट। और मैं आपको बता दूं पाकिस्तान के अवाम ने इस चीज को नोट कर लिया, ये किसी एक पार्टी का मसला नहीं था, ये मसला था मुस्लिम उम्मा का, ये मसला था पूरे पाकिस्तान का, ये पार्टी का इशू ही नहीं था। मैं समझता हूं कि पीपल्स पार्टी ने ना आके उनको बड़ा सख्त सियासी नुकसान होगा, उनका जो अपना एक जो थोड़ा बहुत इमेज है जो रिवाइव कर रहे थे बिलावल भुट्टो जरदारी पार्टी को, आई थिंक इट विल बी अ बिग सेटबैक फॉर द पीपल्स पार्टी। ओके फाइन, लेट मी टेक अ शॉर्ट ब्रेक, वापस आते हैं। शहबाज शरीफ साहब की भी जमानत जो है वो मंजूर हो गई है, अब शहबाज शरीफ साहब बाहर वापस आएंगे तो पीडीएम का क्या मुस्तकबिल होगा, और वो पीपल्स पार्टी जो पीडीएम से नाराज नजर आती है, क्या वो पीडीएम से राजी नजर आएगी। मुख्तसर सा ब्रेक, वापस आते हैं। सिर्फ रॉयल फैंस दे अपने कस्टमर्स को लाइफ टाइम गारंटी। रॉयल फैंस, साथ जिंदगी भर का। खैबर पख्तूनख्वा की कुल आबादी इस वक्त 4 करोड़ से जायद है, जिसमें हर साल 10 लाख अफराद का इजाफा हो जाता है। मौजूदा रफ्तार से आबादी बढ़ती रही तो सूबे की आबादी आइंदा 25 साल में 2 गुना हो जाएगी। हमारे मौजूदा वसाइल हमारी आबादी का बोझ उठाने से कासिर है। शहर फैलते और ज़राई अराजी घटती जा रही है।
माहौलियाती आलूदगी के सबब नबातात और हैवानात मादूम हो रहे हैं। खुराक की तलब और रसद में खलीज बढ़ती जा रही है और समाजी बुराइयों में इजाफा होता चला जा रहा है। वालिदैन अपनी जिम्मेदारियों की अहसन अदायगी को यकीनी बनाएं। वसाइल और आबादी में तवाजुन के लिए बच्चों की पैदाइश में 3 साल का वक्फा रखें। तवाजुन बरकरार, जिंदगी बावकार। महकमा बहबूद आबादी, हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा। होम डिलीवरी के लिए अभी royalfans.com पर ऑर्डर करें। أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और शहबाज शरीफ साहब के जो वो बाहर जब आ जाएंगे तो उसके मुल्की असरात पे, सियासत पे क्या असरात होंगे उस पर बात करेंगे। लेकिन डॉक्टर साहब आप कुछ कह रही थी, आप कंप्लीट कर लें। जी बिल्कुल, देखें जब भी इस किस्म की कोई बात आती है जहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज आते हैं, जहाँ पर हमें अपने मुल्क के लिए
کوئی پازیٹیو چیز کرنی ہے تو یہ ہمیشہ اپوزیشن جو ہے کوئی نہ کوئی ایکسکیوز. جب FATF کے لیے ایک لیجسلیشن ہونی تھی اور وہ انتہائی ضروری تھی اور سب کو پتا تھا کہ وہ قومی مفاد کی لیجسلیشن ہے, اس وقت یہ لوگ آرام سے واک آؤٹ کر کے چلے گئے پارلیمنٹ وہ فلور. اور اس چیز کی گواہ اگر آپ ریکارڈز اٹھا کے دیکھ لیں کہ اسپیکر نے آج تک کتنا ٹائم اپوزیشن کو بولنے کے لیے دیا اور کتنا حکومتی بینچز کو, تو زیادہ ٹائم جو ہے وہ اپوزیشن کے لوگوں کو ملا ہے. اور اگر وہ اب بھی بولنا چاہتے, اب بھی اپنا انپٹ دینا چاہتے تو they were most welcome to give. مگر وہ وہاں آتے تو صحیح, قرارداد کیا تھی کہ اس کے اوپر بحث کی جائے اور پارلیمنٹ مل کے اس کے اوپر کوئی نتیجہ نکالے. تو آئی تھنک ان کو وہاں پر آنا چاہیے تھا, اپنا انپٹ دینا چاہیے تھا جو بھی ان کے ویو پوائنٹ تھے اس کے. اور جہاں تک پرائم منسٹر کی بات ہے, پرائم منسٹر نے ایک دن پہلے پوری قوم کو اعتماد میں لیا ہے. انہوں نے اپنی پالیسی کو بڑی کلیئرٹی کے ساتھ ڈیفائن کیا ہے کہ ہمارا ملکی مفاد کس چیز کے اندر ہے. اور انہوں نے یہ بار بار کہا کہ اگر مجھے یہ لگتا کہ اس چیز سے ہمارے کاز کو فائدہ ہونا ہے تو میں اس چیز کی بھی پرواہ نہ کرتا کہ ہماری اکانومی کو کیا نقصان ہونا ہے, مگر اس سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہونا. تو آئی تھنک پرائم منسٹر نے بڑی کلیئرٹی سے اپنا پورا موقف دے دیا تھا, وہ سائلنٹ نہیں رہے اور انہوں نے پوری قوم کو اعتماد میں لیا. تو اس کے بعد تو ان کو کوئی شکایت نہیں ہونی چاہیے پرائم منسٹر کی ایبسنس کی. آپ نے یاد دلایا کہ یہ لوگ اپوزیشن ساری واک آؤٹ کر کے چلی گئی تھی, واک آؤٹ تو بننا تھا نا, آپ کو یاد ہے نا کہاں گئے تھے؟ جی بالکل, تو واک آؤٹ تو بننا تھا. اچھا چٹان صاحب چلیں چھوڑے اس چیز کو. کل والا واقعہ انتہائی ایک بہت بڑا ایک سانحہ ہے ہمارے لیے, کیونکہ ہم نے بڑے بڑے سانحہ دیکھے ہیں تو ہم وہ فیل کر سکتے ہیں کہ کیا وقت ہوتا تھا. اور مجھے یاد ہے جب ہم 10-10 گھنٹے کی ٹرانسمیشن کیا کرتے تھے کہ آج یہاں پہ بلاسٹ ہو گیا, آج یہاں پہ بلاسٹ ہو گیا, یہاں پہ خود کش حملہ ہو گیا. اس کے بعد ہم نے پنجاب میں جس طرح سے گورنمنٹ کی ریاست کی ریٹ کو ہاتھ میں لیا گیا اور پھر سے ساری چیزیں ہوئیں. اب اس وقت کیا ضروری ہے؟ ملک میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی ضروری ہے, ملک میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو مینٹین کرنا ضروری ہے, یا PDM کی سیاست ضروری ہے اور حکومت مخالف تحریک ضروری ہے؟ سوچ کے بتائیے گا. دیکھیے آپ کے ملک کو خطرہ کیا ہے. آپ کے ملک کو خطرہ یہ ہے کہ یہ دنیا میں واحد اسلامی ایٹمی طاقت ہے اور بہت عرصے سے لوگ اس میں لگے ہوئی ہیں کہ اس میں اس طرح کے حالات بنائے کہ یوکرین کی طرح خدا نخواستہ یہ اپنی ایٹمی اثاثے اٹھا کے کسی اور کے حوالے کر دے. تو آپ کے لیے سب سے پہلا جو ہے وہ امن و امان کی ضرورت ہے. امن و امان کے لیے پولیٹیکل اسٹیبلٹی میٹرز. تو یہ کس کا کام ہے؟ یہ حکومت کا کام ہے, یہ تو ہمارا نہیں ہے. حکومت کا کام ہے, حکومت کا کام ہے. دیکھو اتفاق رائے بنانا, 18ویں ترمیم پہ کس نے اتفاق رائے بنایا تھا؟ ہم نے بنایا تھا. اچھا نیشنل ایکشن پلان پہ کس نے بنایا تھا؟ مسلم لیگ نون نے. اچھا نیشنل ایکشن پلان پہ کس نے بنایا تھا؟ نیشنل ایکشن پلان پہ تو مسلم لیگ نون نے بنایا تھا. مجھے پتا ہے مسلم لیگ نون نے بنایا تھا, انہوں نے اپنا 126 دن کا دھرنا ختم کیا تھا. عمران خان صاحب نیشنل ایکشن پلان پہ پہنچے تھے. یہ تمام چیزیں ہوئی تھی. ایک جوک تو برداشت کر کے میں اپنے ہنسی کو قابو کر دیا. آپ جوک پہ سنائیں گے تو ہنسی تو آ جائے گی. بریگیڈیئر صاحب ابھی اپوزیشن یہ بات کہہ رہی ہے, اپوزیشن پیپلز پارٹی جب ان سے سوال کیا کہ ایگزیکٹلی واٹ از امپورٹنٹ. امن و امان, امن و امان یعنی آپ کی جو لا اینڈ آرڈر ہے, پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی موجودگی میں یا ہوتے ہوئے لا اینڈ آرڈر کو ہم بہتر بنا سکتے ہیں, یا ان چیلنجز سے ہم فیس کر سکتے ہیں, نفس آزما ہو سکتے ہیں؟ نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ خاص کر میں اپوزیشن کی بات کر رہا ہوں, انہوں نے بالکل وہ ذمہ دار ان کا رویہ نہیں ہے. لوگ اس سے مایوس ہو رہے ہیں کہ بھائی اب اس چیز کو چھوڑ دیں, اس گورنمنٹ نے نہیں جانا, 2 سال رہ گئے, 2 سال کا انتظار کریں, بلکہ اگلے 2023 کے الیکشن کے کی طرف ان کو دیکھنا. اور جو الیکشن ریفارم آنے, جو اور ریفارم آنے ہیں, الیکٹرانک ووٹنگ وغیرہ, یہ تمام چیزیں آپ اس پہ فوکس ہونا چاہیے. اور دوسری امپورٹنٹ چیز یہ ہے, کل اتنا یہ جو پرسوں اتنی سیریس سچویشن میں, سنجیدہ ماحول میں ایک ایشو, اتنا ہائی سینسٹیو ایشو تھا, اس پہ آ کے جس طرح کا گفتگو کی ہے شاہد خاقان عباسی صاحب نے, جو نہایت ایک سوبر آدمی ہے, عام حالات میں ایسی گفتگو نہیں کرتے ہیں, لیکن شاہد خاقان عباسی جو ایک سابق پرائم منسٹر بھی ہیں, جب وہ ایسی گفتگو کریں گے اور پوری دنیا لائیو اس کو دیکھ رہی ہے, آپ مجھے بتائیں پاکستانی عوام کا مورال کدھر جائے گا؟ علیحدہ بات ہے, میں پھر کہوں گا کہ وزیر اعظم بھی اگر ہوتے تو اچھا ہوتا, کہ ہم لوگ زیادہ ہمیں تسلی ہوتی, لیکن بھارت انہوں نے ایک دن پہلے قوم سے خطاب بھی کیا تھا. مائی پوائنٹ از دس, بھائی کیوں نہیں, فار دا سیک آف پاکستان, فار دا سیک آف نیشنل یونٹی, فار دا سیک آف پولیٹیکل ہارمنی, فار دا سیک آف اپنا یہ تمام حالات کو لا اینڈ آرڈر کے لیے, آپ اکٹھے بیٹھ کے 2 سال تو خدا رہا کام کر رہے ہیں. اکانومی اللہ اللہ کر کے اس کووڈ حالات میں, کووڈ کے حالات میں دیکھیں انڈیا میں کیا ہو رہا ہے. اس کووڈ اکانومی کو لے کے ہم آگے لے کے چل رہے ہیں. یہ معجزہ ہے,
ये मौजूदा है। फिर लोग बात करते हैं जी इकोनॉमी, ओ भाई ये तो नॉर्मल हालात ही नहीं है। इन हालात में भी जाके अगर हमने ये चीज अचीव कर रहे हैं तो ऑपोजिशन को इनको साथ देना चाहिए। तो मैं समझता हूं बहुत लोग बहुत मायूस हुए हैं जो कल हमने बिहेवियर देखा है अपना नेशनल असेंबली के अंदर। अब कल ये फिर आएंगे जुमे को, वहां पे फिर ये लड़ेंगे, फिर लड़ाई करेंगे। क्या यार पाकिस्तान तो थोड़ा इनको भी सोचना चाहिए। ठीक है, मैं ज़रा पीडीएम के मामले पर और शहबाज शरीफ साहब की जो जमानत होगी है वो बाहर आएंगे, मेरा ख्याल है ये लोग ज़्यादा उनके साथ कंफर्टेबल भी होंगे। मुख्तसर सी शायद खाकान अब्बासी साहब की वो बात पे आपसे बात करना चाह रही हूँ। जब परसों की ये बात है, जब ये सेशन हो रहा था और मैं जब वो सेशन लाइव देख रही थी, तो जब शायद खाकान अब्बासी ने ये बात बोली तो उनकी बैक थी और वो स्पीकर साहब पे कैमरा था, तो वो कहते कि आप हद पार ना करें वरना मैं भी हाथ से उतर। मैंने थोड़ी देर के लिए मैंने इस चीज़ को बिलीव ही नहीं किया कि ये शायद खाकान अब्बासी कह सकते हैं। मुझे लगा शायद किसी और ने कहा होगा और ये थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, क्लैरिटी मुझे लगा कि नहीं थी। लेकिन बाद में जब रियलाइज हुआ तो समझ नहीं आया कि मुल्क के साबिक वज़ीर आज़म उठ के स्पीकर के लिए इस किस्म के जुमले, और आज भी उसी के साथ कह रहे हैं मैं माफी नहीं मांगूंगा, अल्लाह ताला से माफी मांगता हूँ। भाई जो बंदा हुकूकुल इबाद भी कोई चीज होते हैं, आपने इंसान के साथ बदतमीजी की है, माफी आप अल्लाह ताला से तलब कर रहे हैं। पार्लियामान की अपने कुछ अदब आदाब होते हैं। आप इतने सीनियर पार्लियामेंटेरियन हैं, इतने तजर्बेकार हैं, आप प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री रह चुके हुए हैं। तो जिस वक्त ये करारदाद पढ़ी गई है उसके बाद स्पीकर ने इनको माइक दिया है कि आप अपना, ज़ाहिर है कि ऑपोजिशन उस करारदाद के ऊपर अपना इनपुट दे, तो उसके बाद तो कोई जवाब बनता ही नहीं था कि वो अपना एक पॉजिटिव इनपुट देते। जो भी उनको अगर उस करारदाद में कोई काबिल एतराज़ चीज़ लगी थी या वो उसमें कोई एडिशन कराना चाहते थे या कोई उसके अंदर कोई चीज़ उनको मुनासिब नहीं लगी थी या कोई कमी लगी थी, तो उनके पास फ्लोर था, वो फ्लोर के ऊपर अपने इजहार राय करते और हर एक को हक था। वो करारदाद पेश ही इसीलिए की गई थी। रोज़ा ज़्यादा लग रहा था जी मेरा ख्याल है, मगर ये उन्होंने कुछ अरसे से उनका ये नामुनासिब रवैया जो है वो हम पार्लियामान के अंदर भी देख रहे हैं। वो अननेसेसरीली जो है वो एक जैसे अनकॉल्ड फॉर फाइट्स पिकअप करते हैं और बजाय इसके कि वो अपना पॉजिटिव इनपुट दें, वो इस किस्म का रवैया अपना के शायद वो सोचते हैं कि वो हम लोग कोई पॉइंट स्कोरिंग, पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग होती है और माहौल ख़राब किया जाता है। जबकि ये एक ऐसी करारदाद थी जिसके ऊपर मैं समझती हूँ कि हर मुसलमान जो है वो उसको किसी हुकूमत का मसला नहीं था, किसी हुकूमत का मसला नहीं था। जो एतराज़ात थे और उसके बाद स्पीकर साहब ने जिस तरह कहा कि अगर ऑपोजिशन कोई मुतफिका लाना चाहती है तो उसकी भी इजाजत दी, तो एक माहौल बना हुआ था, उनको उसी तरह रखना चाहिए था। इट वाज अनकॉल्ड फॉर व्हाट इट ठीक है। पीडीएम का मुस्तकबिल पीपल्स पार्टी के साथ वाबस्ता है और अभी तो आप नून लीग से बहुत ज्यादा नाराज हैं, लेकिन कितने कंफर्टेबल हैं शहबाज शरीफ साहब की पॉलिटिक्स के साथ या हमजा शहबाज की पॉलिटिक्स के साथ? देखिए जी, ये इनका आपस का मसला है। हमारे साथ भी पीडीएम का कोई मसला नहीं था, ये तो इनका अंदरूनी मसला है। एक मुस्लिम लीग लंदन है, एक मुस्लिम लीग पंजाब है, इनके आपस की लड़ाई है। क्या कहा आपने? हमारे एक साथ मुस्लिम लीग लंदन है और एक मुस्लिम लीग पंजाब है। पाकिस्तान कोई नहीं है। हमारे साथ क्यों लड़े? पाकिस्तान कोई नहीं है हमारे साथ। पाकिस्तान कोई नहीं है। अच्छा, ये दोनों पाकिस्तान के है ना, पंजाब क्या पाकिस्तान नहीं है? वही तो पूछो, तो फिर आपका मुस्लिम लीग पाकिस्तान है तो पंजाब में इनकी अक्सरियत अच्छा, ज्यादा है। पीपल्स पार्टी सिंध है, ऐसे पीएमएलएन नहीं, पीपल्स पार्टी अल्हम्दुलिल्लाह गिलगित बल्तिस्तान से लेकर हर जगह पे है। चलो आपकी बात मान लेता हूँ, मुस्लिम लीग पाकिस्तान है। तो ये इनके आपस के मसले हैं, इनसे हमें कोई लेना देना नहीं है। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, ये असेंबली के अंदर जो वाक़या हुआ था, ये वाकई बहुत काबिल मुज़म्मत बात है। ये तो पार्लियामेंटेरियन को तो क्या, पार्लियामेंटेरियन का तो अपना एक ज़बान है ना, पार्लिमानी ज़बान। किसी को गुस्सा आ जाता है ना और जाता है तो कहते हैं भाई आप बहुत गुस्से में जा रहे हैं, लेकिन पार्लिमानी ज़बान में बात करें। यानी पार्लिमानी ज़बान में इस तरह के अल्फाज नहीं है। सही बात है। लेकिन एक तो आप गलत अल्फाज इस्तेमाल करें, वो बाहर भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लेकिन एक बात गलत है, वो मैं बाहर करूँ तो गलत है, लेकिन मस्जिद में जाके अगर उसको करो तो ये और ज़्यादा गलत है, और अगर इमाम मस्जिद को करो तो ये और ज़्यादा गलत है। इसी तरीके से पार्लियामान जो है ये एक मुअज़्ज़ज़ इदारा है, इसके हम सबको इनका एहतराम का ख्याल रखना चाहिए। मुझे ये बताएं कि मैं जिस कॉन्टेक्स्ट में पूछ रही थी, बिलावल भुट्टो सरदारी ने कहा था कि अगर वहाँ के नायब सदर से बात करनी होगी तो मेरी नायब सदर से करें। हमें अगर वफाक में किसी से बात करनी होगी तो नेशनल असेंबली में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब हैं, उनसे बात करेंगे। पंजाब में किसी से बात करनी होगी, वहाँ पे अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज हैं, उनसे बात करेंगे। तो आपको लग रहा है आने वाले दिनों में हमजा शहबाज अगर इसमें इन हो जाते हैं या
शहबाज शरीफ वाकई पीडीएम में जाते हैं तो कोई फर्क पड़ेगा इसमें कोई साइंस और रॉकेट नहीं है, इससे तो इनकार नहीं किया जा सकता है ना, रॉकेट साइंस नहीं है, इससे तो इनकार नहीं किया जा सकता है कि हमजा शरीफ अपोजिशन लीडर है पंजाब असेंबली में। आप किसके साथ कंफर्टेबल है, जरा कर लेना खुल के बात, इधर उधर की बात। हम सबके साथ है भाई, हम तो मरियम साहबा के साथ भी आप लोग कंफर्टेबल हैं? बहुत अच्छा ताल्लुकात है। तो फिर आप बिलावल साहब दोबारा मुलाकात करेंगे या उनकी नायब सदर मुलाकात करेंगे? हमें फिलहाल जो हमें शोकाज नोटिस मिला है, इस पे जब तक माफी नहीं मांगी जाती है तब तक हम वापस नहीं आ सकते। हम मुस्लिम लीग से अकेले में मिल सकते हैं लेकिन पीडीएम में नहीं आ सकते। पीडीएम में तब आएंगे जब जो शोकाज नोटिस मिला था इस पे हमसे माफी मांगी जाए हमारी लीडरशिप से, क्योंकि अगर ये हमारा लीडरशिप बर्दाश्त करे, ये हमारे बर्दाश्त का नहीं है कि किसी का क्या जरूरत हो सकता है कि मेरे चेयरमैन को शोकाज नोटिस दे पीडीएम के सदर मांगे। ये जिसने शोकाज नोटिस दिया है ये खान अब्बासी साहब ने दिया है, शाहिद खान अब्बासी साहब ने, और वो जनरल सेक्रेटरी है, उन्होंने दिया भी है, इनके साइंस भी दिया है, तो उनको माफी मांगना चाहिए। पीडीएम से अलहदा है पीपल्स पार्टी, बिल्कुल अलहदा है, तब तक हम अलहदा है जब तक माफी नहीं मांगते हैं। माफी मांग लेते हैं हम वापस आ जाते हैं, हमारे बहुत बड़े मकासद है, हम इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ का चाहते हैं, आइन का बालादस्ती चाहते हैं, तो इसलिए हम जरा आप कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि मैं तो ये समझ रही हूँ क्योंकि जो बन रही है सिचुएशन उसमें पीपल्स पार्टी अगर पीडीएम में वापसी का कोई रास्ता है तो वो ज्यादा बेहतर तौर पे या ज्यादा कंफर्ट जोन में वो शहबाज शरीफ साहब के साथ यानी मुफाहमत की सियासत के साथ चलेगी आने वाले वक्त में। आपका टेक क्या है इस पर? देखिए इसमें तो कोई शक नहीं है, शहबाज शरीफ जो है वो एक मॉडरेट और स्टेटस को टाइप सियासतदान है। वो ये हंगामा आराई और ये लॉन्ग मार्च और शॉर्ट मार्च इन चीजों में वो बिलीव नहीं करता, या मास रेजिग्नेशन में। इसी तरह हमजा शहबाज उनका बेटा है वो, और एक पंजाब असेंबली में है लीडर ऑफ द अपोजिशन और ये नेशनल असेंबली में। होगा ये कि मामला ऐसे ही चलता जाएगा, ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस चलती जाएंगी, बट ओवरऑल पीडीएम मेरी नजर में इज नाउ हिस्ट्री। कोई लॉन्ग मार्च नहीं, कोई रेजिग्नेशन नहीं, इस तरह चलते चलते ये आप देखें अगले साल ये तमाम पार्टी जो है दिल बी प्रिपेयरिंग फॉर द 2023 जनरल इलेक्शंस, तो लिहाजा ये मामला ऐसे चलेगा। क्योंकि जो नैरेटिव है मरीम नवाज को, नवाज शरीफ का, कि अदारों को टारगेट करो, गवर्नमेंट को गिरा दो, ये कर दो, वो कर दो, अफरा तफरी मुल्क में, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और पीपल्स पार्टी और हमजा शहबाज, ये उस नैरेटिव के लोग नहीं है। पीपल्स पार्टी इज वेरी हैप्पी इन स्ट्रेंथ, वो जनाब मौज मेला लगा हुआ वहां पे, अरबों खरबों उनके पास फंड है वहां पे। वो बेवकूफ है कि वो जनाब आप की गवर्नमेंट लगा के अर्ली इलेक्शन करा लें, क्या जरूरत है? उनकी इतनी अच्छी 2/3 मेजोरिटी है वहां पे, उनको तो कोई इशू नहीं है वहां पे। अच्छा मुख्तसरन ये भी बता दीजिएगा कि विद इन द पीएमएलएन, एक तो उन्होंने कहा कि पीएमएलएन लंदन, पीएमएलएन पंजाब, मैंने तो फिर भी उसको पाकिस्तान कह दिया, लेकिन वो खैर उस पर एग्री भी कर गए। पार्टी पर कौन सा जो नैरेटिव है वो डोमिनेट करेगा? आया वो लंदन वाला करेगा या पाकिस्तान वाला करेगा? देखिए एक पीएमएलएन, मैं जरा और इसको फाइन ट्यून कर देता हूं, वैसे उन्होंने सही फरमाया, एक है पीएमएलएन जाती उमरा राइवेंट और एक है पीएमएलएन मॉडल टाउन, ठीक है ना जी, जहाँ पे ये शहबाज शरीफ और ये लोग रहते हैं। सो मेरा नहीं ख्याल है कि मरीम नवाज का अब वो रोल रहेगा। बेशक शी द वाइस प्रेसिडेंट वो साइड लाइन रहेंगी, मार्जिनलाइज रहेंगी, क्योंकि उनका जो नैरेटिव है वो फेल हो गया, लोगों ने उसको रिजेक्ट कर दिया। नवाज शरीफ वैसे एब्सकॉन्डर हैं, वो बाहर बैठे रहेंगे, पता नहीं कब वो पाकिस्तान आएंगे, आई डोंट थिंक सो। मरीम नवाज के शायद अभी भी प्रोग्राम ये हुआ किसी तरह कोई मौका मिले वो पाकिस्तान से चली जाए, फरार हो जाए, जो भी आप उसको कहें। तो मुझे तो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज यही नजर आते हैं जो कि आगे चलेंगे पीएमएलएन को लेके। तो इनके आपस में जो ग्रुपिंग है वो तो बहुत क्लियर है। ठीक है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कभी कभी आपको इकट्ठे नजर आ जाएंगे, कोई पीडीएम की मीटिंग भी शायद इकट्ठे नजर आ जाएंगे, बट नथिंग मोर देन दैट। ठीक है, अच्छा अब मैं दोबारा से वापस आ जाती हूँ क्योंकि जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की बात करी थी और तमाम जो भी स्टेक होल्डर्स हैं या जो भी हल्के हैं उनका कहना ये होता है कि हुकूमत वक्त पे जिम्मेदारी ज्यादा आयद होती है। अब चूंकि पीडीएम का तो वैसे ही शिराजा बिखर चुका है, तो अगर थोड़ा बहुत एक चैलेंज कोई या थ्रेट था भी गवर्नमेंट का तो वो भी नहीं है। तो दिस इज द राइट टाइम कि आप इन लोगों को भी ऑन बोर्ड लें, इनको बिठाएं, रिफॉर्म्स पे बात करें, लेजिस्लेशन पे बात करें, जो जो चीजें पेंडिंग में हैं। जी देखिए, बिल्कुल मैं समझती हूँ कि हुकूमत ने इनको हर स्टेज के ऊपर ऑफर की है और हर जगह पे जो पार्लियामान के अंदर कमेटीज बनी है, इन लोगों की पूरी रिप्रेजेंटेशन उसके अंदर मौजूद है। अभी ये बात कर रहे थे कि जी कोविड का मसला हुआ, कोविड के ऊपर पार्लियामानी कमेटी है जिसके अंदर तमाम पार्टीज के पार्लियामानी लीडर्स मौजूद हैं।
الیکٹرل ریفارمز کے اوپر اگر کوئی کمیٹی ہے اس کے اندر ان کے حتیٰ کہ مطلب کہ اس وقت جتنے نیشنل ایشوز ہیں ان کے اوپر پارلیمنٹ کے اندر جتنی کمیٹیز موجود ہیں ان میں سب میں ان کی ریپریزنٹیشن موجود ہے اور ان کے پاس ایک بڑا اچھا اپرچونٹی ہے کہ وہ اس کے اندر اپنا پازیٹیو انپٹ دیں. مگر ہوتا یہ ہے کہ ان کمیٹیز میں جس طرح سے یہ فلور پہ نہیں آتے یا آ کر واک آؤٹ کر جاتے ہیں, اسی طرح ان کمیٹیز کے اندر بھی ان کا یہی ایٹیٹیوڈ ہے کہ یہ لوگ وہاں پر نہیں آتے ہیں. کووڈ کے لیے جو میں چونکہ خود اس کی ممبر تھی, کووڈ کے لیے ان کو بلایا کہ آپ اپنی سفارشات دیں, یہ 1 یا 2 میٹنگ شروع میں آئے, اس کے بعد انہوں نے ٹوٹلی اس میٹنگ کا بائیکاٹ کیا, اس میٹنگ میں نہیں آئے یہ لوگ, اس کی میٹنگز ہوتی رہی تھیں. تو اسی طرح باقی میں بھی میں سمجھتی ہوں کہ یہ لوگ مل بیٹھنے والی سیاست پہ ان کی طرف سے کمی ہے. حکومت جو ہے وہ ان کو ہر جگہ پہ آفر کرتی ہے کہ کمیٹیز میں آئیں, اپنا انپٹ دیں, اپنی سفارشات دیں, مگر ان کی پریزنس ہمیں وہاں پر نظر نہیں آتی. ٹھیک ہے, اس کا جواب آپ ضرور دے دیجیے گا. میرے خیال سے اسٹینڈنگ کمیٹیوں کی بات کرتی ہے. نہیں جی, میں اس کے علاوہ جو پارلیمانی اس کے علاوہ تو مجھے کوئی کمیٹی نظر نہیں آ رہی ہے کہ آپ لوگوں نے بنائی ہے. ان کے لیے کووڈ کے لیے کمیٹی جو بنائی تھی وہ ممبران کی نہیں تھی, وہ سربراہان کی تھی. اس میں شہباز شریف صاحب بھی آیا تھا, اس میں بلاول صاحب بھی آیا تھا. آپ کو یاد ہوگا تو جناب محترم عمران نیازی صاحبہ کہ انہوں نے اپنا سپیچ کر کے اور پھر چلا گیا. انہوں نے شہباز شریف کی سپیچ نہیں سنا, انہوں نے بلاول صاحب کا نہیں سنا, پھر شہباز شریف صاحب بھی نکل گیا, پھر بلاول صاحب بھی نکل گیا, لیکن اپنے نمائندوں کو چھوڑ دیا. ایسی نہیں نکلا کہ بائیکاٹ نہیں کیا, اپنے نمائندوں کو چھوڑ دیا لیکن نکل گیا. اور اگر یہ اسٹینڈنگ کمیٹی کی بات کرتی ہے تو وہ تو اسٹینڈنگ کمیٹی کی نہیں ہے, پارلیمانی لیڈرز کی کمیٹیز ہم نے شروع سے نادیہ, ہم نے شروع سے کی دیا ہے. جس ملک میں سیاسی استحکام نہیں ہوگا نا, ملک کے لیے دو چیزیں بہت ضروری ہیں. ایک طرف اور بات کرنی ہے, جہاں پہ سیاسی استحکام نہیں ہے وہاں پہ اور بات کرنی ہے. ایک تو یہ ہے نا کہ اپوزیشن اور حکومت کے آپسی تعلقات, ایک دوسرا ایک مسئلہ جو سینٹ میں اٹھا ہوا ہے وہ اپوزیشن کے ساتھ تعلقات. آج بھی ملاقات ہوئی چیئرمین سینٹ سے یوسف رضا گیلانی صاحب کی, جو وہاں کی جو اسٹینڈنگ کمیٹیز ہوتی ہیں سینٹ کی, اس کے پی ایم ایل این نے اس کا بھی بائیکاٹ, وہ کہتے جی ہم نہیں آئیں گے. مصدق ملک صاحب کو شاید ملنا تھا, وہ اس پہ بھی وہ نہیں ملے. تو یہاں پر یہ حکومت اور اپوزیشن کے تعلقات تو چھوڑے, اپنی اپوزیشن کے تعلقات تو درست کریں. پچھلی بار اپوزیشن تھا نا, 2 اپوزیشن تھے, ایک ہم اپوزیشن میں تھے, پیپلز پارٹی اپوزیشن میں, دوسرا پی ٹی آئی تھا. ہم ایک سائڈ جاتے تھے, پی ٹی آئی دوسری سائڈ جاتے تھے. کبھی کبھی عمران خان صاحب کے ہمارے تھے, حکومت مخالف تحریک آپ ساتھ ساتھ چلانے کی بات کر رہے ہیں, تو یہ تو آپ کے دیکھیں ضروری نہیں ہے کہ ہم نہیں وہ نقصان دے رہا. ہم ایک دوسرے میں ضم نہیں ہو گئی. ضروری نہیں ہے کہ ہم اپوزیشن ہر بات پہ ساتھ چلے. کچھ چیز ایسے ہوں گی جس پہ ہم ساتھ چلیں گی, کچھ چیز ایسے ہوں گی جس پہ ہمارا اپنا موقف ہوگا, جس پہ مسلم لیگ نون کا اپنا موقف ہوگا, جس پہ مولانا فضل الرحمان کا اپنا موقف ہوگا. ایک پارٹی کے اندر, ان کا تو ایک پارٹی ہے نا, یہ سینٹ کے الیکشن میں بلوچستان میں ان کی ایم پی ایس کیا کہہ رہے تھے, کراچی میں اس کے ایم پی ایس کیا کہہ رہے تھے. ایک پارٹی کے لوگ بھی ایک ساتھ نہیں چل سکتے ہیں. یہ جمہوریت کی خوبصورتی ہے کہ اس میں اختلاف رائے ہوتی ہے. وزیر اعظم صاحب نے بھی بات کی کہ ہم نے بڑی مشکل سے پاکستان میں امن بحال کیا ہے, بڑی ہم نے قربانیاں دی ہیں, ہم کسی صورت اس کو جو ہے وہ انڈو نہیں کر سکتے. یا ظاہر سی بات ہے اگر پولیٹیکل جس اسٹیبلٹی کی, لا اینڈ آرڈر سچویشن کی ہم بات کر رہے ہیں, اب لا اینڈ آرڈر سچویشن کو مینٹین رکھنے کے لیے اس قسم کے واقعات نہ ہوں, کتنی امپورٹنٹ ہے پولیٹیکل اسٹیبلٹی, اور کیا اس وقت ذمہ داری ہے حکومتی کاندھوں پر اور اپوزیشن کے کاندھوں پر؟ نہیں دیکھیں, پاکستان کے عوام جو ہے وہ تو اپنی پولیٹیکل لیڈرشپ کی طرف دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, جو ملٹری لیڈرشپ ہے, ہماری سیکورٹی کے ادارے ہیں, وہ ان کا ایک رول ہے, وہ کر رہے ہیں. لیکن اوور آل جو ہے وہ تو پولیٹیکل ہارمنی اور ایک پولیٹیکل پولرائزیشن اگر پاکستان میں ٹیمپریچر جو ہے ان کو کم ہونا چاہیے. لوگ دیکھنا, یہ پچھلے 3 سال سے یہ دیکھ رہے ہیں, یہ معاملات جو ہے نا اس میں تالی دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے. یہ پی ٹی آئی گورنمنٹ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ بھائی اگلے 2 سال کے اندر آپ اپوزیشن کو ساتھ لے کے چلے, اور ایک ایسا ماحول کریٹ ہونا چاہیے جو کہ لوگوں کو, جو خاص کر پارلیمنٹ میں نظر آئے کہ ہاں جناب اب یہ دونوں گورنمنٹ اور اپوزیشن مل کے اب یہ لیجسلیشن بھی کر رہے ہیں, ان کے تعلقات میں بھی بہتری آ رہی ہے. احتساب کا پروسیس ایک انڈیپینڈنٹ پروسیس ہے, وہ چلتا رہے گا. ابھی احتساب عدالتیں بن جائیں گی 30 اور, اس میں جن لوگوں نے کنوکٹ ہونا وہ کنوکٹ ہو جائیں گے, جو بچ جائیں گے وہ بچ جائیں گے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے وہ عوام کا مرال, وہ اپنا لا اینڈ آرڈر, انٹرنل اسٹیبلٹی, اپنا اکانومی کے معاملات, یہ پولیٹیکل لیڈرشپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے, ان کی ذمہ داری ہے. افٹر لوگوں نے جو ووٹ دیا ہے اور اتنے پرسن پریولیجز ہیں ان کے, جب یہ پارلیمنٹ میں آتے ہیں 5 سال, وہ کس لیے دیے جناب؟ ٹھیک ہے, بہت شکریہ بریگیڈیئر صاحب.
बहुत शुक्रिया जी आपके टाइम का। चटान साहब आपका भी, डॉक्टर साहब आपका भी। मुख्तसरन ये कि कल जो सानिया हुआ, जो कोयटा में जो ब्लास्ट हुआ, उसकी मुकम्मल तौर पर छानबीन की जा रही है, सिक्योरिटी लैब्स करार दिया गया है, तो डेफिनेटली ये सिक्योरिटी लैब्स कैसे हो गया वो भी होगा। दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात शेख रशीद साहब ने की थी कि 2 से 2.5 सोशल मीडिया के अकाउंट्स जो कि इंडिया से ऑपरेट हो रहे हैं, और जब टीएलपी के दिनों में जब वो रोड्स पे थी, प्रोटेस्ट थी, तो जो नंबर्स लोकेट हुए थे वो भी इंडियन नंबर्स थे। तो यहाँ पर मेरा ख्याल है ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के लिए कि इस वक्त बहुत ज़्यादा चौकन्ना और इनको सॉर्ट आउट करने की ज़रूरत है कि कौन से वो दुश्मन अनासर हैं जो एक दफ़ा फिर पनप रहे हैं और एक दफ़ा फिर दहशतगर्दी की तरफ मुल्क को ले जाने के दर पे। नादिर मिर्ज़ा को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।